There is good news for film aspirants because FTII, means Film Television Institute of India, has introduced film appreciation course in Delhi itself. Now there is no need to go Pune to appear, or rather to get the knowledge how to prepare the film and to get the idea how we can make film. This course was successfully conducted from 23rd of June to 26th of June. This was 4-day course, and the participants all over India came from 19 states, and more than 130 participants were there, who were felicitated on 26th by Ajay Mittal, Secretary Information and Broadcasting Ministry, along with Dr. Bhupendra Kanthola, and the lecturer were Pankaj Saxena and Munish Bhardwaj. It was really a great experience for the participants and particularly from film aspirants. Now let us see what has happened in this course. त्यांनी त्यावर मात केली पाहिजे. राजा भाऊ, हरिश्चंद्रा चालता हो, एवढं एकच वाक्य आहे. नाही, मग ती पूर्ण कथा किंवा विश्व. Very loquacious, and I make my presence felt. Possibly I talk like a preacher or a politician. But then I am entitled to my opinions, and as the Lord said unto Moses, I am who I am. I don't know, I have many ambitions, but only two need concern us here. One thing I would like to do very much is to go through this country, talk to bottom line, take a little bit of. Manisha, welcoming you. I just want to know about you and your experiences. My name is Shyam Malik. I have done my post-graduation in mass communication and journalism. From where? From this university in Tamil Nadu. Which I year? did it purposely from there because I wanted to have a pan-Indian impact on my education. Very good. I've studied in Central India, I've studied in Northern India. I wanted to study in Southern India also. And it is very important when you are in the media, you should know the country, the whole country. You should not belong to any one state of the country. So that was primarily my reason for doing that. Besides, I've been making films since 1982, and I specialize in terrorism. I've perhaps made the maximum amount of films and maximum amount of programs on the subject of terrorism. Okay. I've also made films for the armed forces on anti-terrorism. So Okay. perhaps I'm the only civilian to have done that. Okay. Besides, I'm the president of Film and Television Producers Welfare Association, which is based in Delhi. We are an association where we enroll people associated with films who have a minimum experience of 3 years. But we enroll our members on the basis of the recommendation of our members. So we do not want to cluster our association with anybody, and we do not want to make this association into a cry association where people are crying, we haven't got this, we haven't got that. So these are the two factors that govern the activities of this association. What is your personal experience as far as filmmaking is concerned? Means for the budding filmmakers, I should say. What kind of message you just want to convey? See, the Means to coming into this field, what is your experience says that a budding filmmaker should adopt all these things to become a good filmmaker? Because you are this is third generation in filmmaking, as you told me. I just want to explore that thing also. See, I'll tell you, the biggest change that has happened in the filmmaking is the taking. The taking is how you place the camera.
Earlier, the cameras were bulky, they were heavy, bulky, their movements were restricted. Today you have a camera mounted on a drone which is a 4K camera which gives you resolution which is good enough for a 70 mm print. So what has changed is the taking. What has changed is the lighting. Earlier we had lights. There were halogen lights. They were warm. The color had to be corrected. There was a lot many other things which had to be taken into account. The lights would streak out. So one had to have a light meter to see every streak of light. It used to take a lot of time and all. Today LED has come. It is light, very light in weight. It consumes very little electricity. Gives you any color temperature that you want. So the technique, the lighting has changed, the taking has changed. Earlier there used to be, the simple thing was there used to be an axis. You worked on an axis when you made a set, you worked on an axis. Today you see that the axis has become a 360 axis. It used to be 180 degrees axis, which you never crossed. Now you have a 360 degree axis, which was beyond the imagination of the filmmakers who used to make films earlier. So these are the technological changes. The second change that has come is in the storytelling. The earlier storytelling was it used to be a story of Ramayana, good versus evil, and it was the good which would always win. Today the stories, that storytelling is over. Today you pick stories, you pick real incident, you pick real life, you make biopics. Now that is a new wave that has changed. The third thing that has changed is our attitude towards programming. Not only our attitude towards programming as a program maker as well as the audience. There is no audience loyalty to a program which is not able to hold the audience. The audience switches its loyalty with the press of the remote controls button. The producers have to keep this shifting loyalty in mind. The audience has to keep this shifting loyalty into mind. So these are the main changes I see in the programming side, programming side from both the sides, from within the screen and outside the screen. What is your view about Film and Television Institute of India is conducting film appreciation course over in Delhi now? What is your observation and what is your experience as a student, I should say? I'm there as a participant in this course and I'm really enjoying it. It's a very, very nice course. It's, I think, a course worth participating in. And these are the professional courses which never happened in Delhi earlier. It's no fault of Delhi actually. Historically, Delhi ceased to remain a cultural capital of the country after 1857. The country the city which became the cultural capital of North India was Lahore, not Delhi. Lahore had a film industry, Bombay had a film industry, but Delhi did not have a film industry for that reason. Then how you see the future of filmmaking and filmmakers from Delhi? No, the dynamics are changing now. Now Lahore is another country. Lahore's film industry is dying. Anyway, it is not our concern. The television industry, especially the news television, is centered in Delhi. So there is a scope for news. The news channels also have programs. So there is a scope for programs in the news. As far as entertainment is concerned, entertainment genre is concerned, it is good that Delhi does not have an entertainment genre production for the reason, very simple reason, that those who are involved in that genre, they automatically
roll towards Bombay. So when you're making a film on that genre, it is better to be in Bombay to find the widest variety, the widest choice that you have. Now you cannot single-handedly say that, okay, I'm establishing an entertainment genre industry in Delhi, so please don't go to Bombay. This cannot happen. So how do you see Noida Film City? Noida Film City is catering to the news channels. It is catering Not to the cinema. Not cinema. It cannot, because anyone who comes to Delhi for shooting would come to shoot outdoor in Delhi. They want to establish Delhi. Studios and They would not want to establish Delhi in a studio, closed studio. They would want to establish Delhi in Rashtrapati Bhavan at India Gate in Connaught Place. They are doing it. They are doing it very well. okay. So that kind of experimentation and that kind of filmmaking would be there. Besides that, we should also be, Delhi has done one more thing. They've started giving one window clearance to the production companies. That will make things very easy for the producers who would want to shoot in Delhi. Okay. Now, as Delhi is easing these norms, Bombay is tightening these norms. Achha, okay. Bombay, you cannot place a camera on the municipal road without The taking permission. a permission Okay. and paying the tax. So, while Delhi outdoor shootings in Delhi are prospering, the outdoor shootings in Bombay are narrowing down. Okay. They are now, you will see most of the shoots that happen in Bombay, outdoor shoots, if they happen in the film city. Okay. Otherwise they happen indoors in the studios. I just ask a question. What message you just want to convey to the budding filmmakers? As you have a very long experience in the filmmaking, I just want to have one single or two-liner message for the young budding filmmakers. Budding filmmakers there's one thing I would want to tell them. Do not try to become a director or a cameraman. There is a scope, huge scope for technicians in this. And the technique is changing every day and the new technique is coming. There is a huge scope for becoming a good editor. There's a very good scope for becoming a effects man. There's a very good scope for becoming a music engineer. There's massive scope. Stop running after these beaten jobs that that come into your mind, because you see, director कौन है, script writer कौन है, producer कौन है. Come on. आपको A.R. रहमान की फिल्म देख के आपको ये समझ आता है कि म्यूजिक डायरेक्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट. When your sound recordist gets an Oscar, you realize that what is the importance of the sound recordist. So there is a scope, a lot of scope. There is a room for each and every one of you. But don't follow the cues. That I would suggest. Thank you, Malik sir.
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है खुद जो है अपना मीडिया से जुड़े हुए हैं और एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स चल रहा है यहाँ पर FTIA द्वारा, आपने इस कोर्स को कितना सार्थक समझा और कितना महत्वपूर्ण है एक फिल्मकार बनने के लिए? देखिए, FTIA द्वारा संचालित ये फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स फिल्मों के बारे में एक हमारी समझ विकसित करती है और एक चीज़ की जो बहुत आवश्यकता है इस देश को, फिल्म लिटरेसी की, उसके लिए एक बहुत सार्थक पहल है। जहाँ तक फिल्म मेकर बनने की बात है, यदि किसी के अंदर वो जज्बा जुनून है तो बन सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान भी चाहिए। इस संदर्भ में इस एप्रिसिएशन कोर्स से एक आउटलाइन, एक रूपरेखा पता चली कि किस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं, फिल्में क्या हैं, फिल्मों का इतिहास और फिल्म की बहुत जो महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं, तो उसलिए आदमी प्रेरित हो सकता है। ये कोर्स एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिसमें अगर आपके अंदर अंदरूनी जज्बा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने खुद यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन किया जी, तो क्या उद्देश्य रहा होगा आपका? जी, मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हूँ स्वभाव के तौर पे, और मैं इसीलिए जानना चाहता था और फिल्मों में मेरी रुचि रही है। फिल्में देखता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, समीक्षा करने की कोशिश करता हूँ। छपा नहीं है, प्रकाशित नहीं किया है, तो उस चीज़ को एक व्यवस्थित ढंग से उस ज्ञान को पाने के लिए मैंने ये कोर्स करना उचित समझा और अब मैं इसके ज़रिए मेरे को जो अपडेट हुआ है उसका लाभ मैं शेयर कर पाऊँगा अपने विद्यार्थियों के साथ। बहुत आप उसको 50 तरीके से बुलवा सकते हैं। मिश्रा जी पे कितना मेहनत करना पड़ा था आपको? शून्य मेहनत करना पड़ा। वो इतने कमाल के एक्टर है ना, हम सोचते थे जितना ना उससे 200% ज़्यादा वो कर देते थे। हमने कहा सर अब इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा कम करो। आप भी एक्ट करके दिखाते थे। मैं क्यों करूँगा, पागल हूँ। एक्टर का अपमान नहीं करना चाहिए। भाई मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अगर एक्टर होता तो मैं एक्टिंग कर रहा होता ना। हैं? हाँ, सब कुछ मैंने। कितना ड्यूरेशन लगी, टाइम ड्यूरेशन कितना लगा फिल्म बनने में पूरा? कॉन्सेप्ट से लेके? हाँ, वो कॉन्सेप्ट से लेके तो लंबा लग गया, लेकिन काम हमने शुरू किया था 2015 सितंबर अगस्त में किया था। अविनाश जी, आप पत्रकार होने के बाद जो फिल्मकार बने, जो टैगलाइन आपका जो चेंज हुआ, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुझे सारे मतलब जो है ना, स्वाद मेरा बढ़ गया है, रोटी का पूरा मामला बढ़ गया है। 2 दिन रोटियाँ ज़्यादा खा रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। जो रिस्पांस मिल रहा है, जो इज्जत मिल रही है लोगों से, मैं जिसके काबिल नहीं हूँ तो काबिल हैं। आपकी एक एक चीज़ें हम महसूस कर रहे थे और जितने आपके एक एक सेंटेंसेस थे वास्तव में बड़े इंस्पायरिंग थे। एक चीज़ आपसे ज़रूर मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई है आपको देखकर कि आपको पढ़ने का भी बहुत शौक है शायद, जैसा कि मैंने महसूस करा। क्योंकि जिस आदमी के पास, और एक आप मतलब जैसे कहना चाहिए ज़मीन से जुड़े, हम आप सभी लोग आपस में फीडबैक भी बात कर रहे थे और महसूस भी किया आप, तो उसका क्या कारण रहा? जैसे आपने बताया आपके फादर भी टीचर थे। हाँ, नहीं, एक तो होता क्या है कि आपका ओरिएंटेशन किस तरह के लोगों के बीच में होता है। तो इत्तेफाक से मैं जहाँ थिएटर कर रहा था, वो ऐसे लोग होते थे जो इमेच्योर थिएटर करते हैं, जो नौकरी भी कर रहे होते हैं, थिएटर भी कर रहे होते हैं। और जब थिएटर करते हैं तो फिर वो होता है कि भाई अलग अलग नाटक पढ़ा जाए, तो नाटक पढ़ना, फिर कहानियाँ पढ़ना, फिर कविताएँ पढ़ना, ये सब शुरू से रहा माहौल। लेकिन उसको कैरी करते हैं आप अपनी निजी दिलचस्पी की वजह से। तो मुझे अगर कोई एक अच्छी किताब पढ़ने को मिल जाती है ना, जब पढ़ लेता हूँ तो मैं बहुत मतलब ऑर्गेज्म की तरह की संतुष्टि मिलती है मुझे एक अच्छी किताब पढ़ने के बाद। सर, जैसे आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, फिल्में कितनी देख पाते हैं फिल्म बनाने वाले आप? अब तो क्योंकि डायरेक्टर, एस्टेब्लिश डायरेक्टर हो गए, आपने पहले ही फिल्म बहुत अच्छे से कर डाली, तो ये और जिज्ञासा है कि आप जो है कितना फिल्म देख पाते हैं? बहुत फिल्म देखते हैं यार। किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? हर तरह की फिल्म देखते हैं, हर तरह की फिल्म देखते हैं। मतलब बहन होगी तेरी से लेकर के और क्वीन से लेकर के हर तरह की फिल्में जो अभी बन रही हैं, जो बाहर की फिल्में हैं, है ना, या बाहुबली, सब देखते हैं। एक आपके मन में जरूर जो नहीं देख पाते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है यार, ये सबसे ये फिल्म, बाद में लोग गाली दे, बहुत गंदी फिल्म थी, तब थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक किया, नहीं देखा। सर, जैसे आपने कहा कि मैं ज़मीन से जुड़ा, अपनी भूमि को मतलब ध्यान रखना चाहता था। जैसे आपने बताया कि आपने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है भोजपुरिया और दिल्ली की उसको लिया, आप आगे जो है इन चीज़ों में ध्यान रखते हैं। आपकी क्या एक एम्बिशन है कि मैं उस सब्जेक्ट पे भी बनाऊं, ऐसा कुछ सोचा है अभी? किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी इंटरेस्ट का कोई आगे? मैं हमेशा जीवन में कभी भी काम करूंगा अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे ही करूंगा। कोई मेरी गर्दन पे चाकू रख करके अपने हिस्से का काम नहीं करवा सकता, अपनी रुचि का काम नहीं करवा सकता।
तो सर वही जानना चाहते थे किस ऐसे सब्जेक्ट पर जो कि आपको, जैसे आपने कहा कि ये एक मेरे उस क्षेत्र का ऐसा मेरे को था, तो ऐसा कोई आगे आपके माइंड के अंदर हो कि हाँ मैं उस पर भी कुछ काम, हाँ है ना, बहुत सारे आइडिया जैसे, लेकिन उसको शेयर करने का एक हाँ नहीं बिल्कुल मुझे पीआर ने बताया कि भी बहुत नहीं करना चाहिए। शैलेश जी ने बोला वो भी कर रहा हूँ, पता है तुम्हारी फिल्म ही नहीं बन पाई तो लोग हंसेंगे बाद यार, वो कहते तो था कि इस पे फिल्म बनाएंगे, बना नहीं पाया, ये होते ना हंसने वाले। ये सर आपके सारे प्रैक्टिकल जवाब है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच सर। अमित जी आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ अमित जी कि जैसे कि आप स्वयं दूरदर्शन में हैं और फिल्म के ऊपर ही आप समीक्षा और कार्यक्रम आपके आते रहते हैं, तो आपका कैसा अनुभव है सिनेमा को लेकर, भारतीय सिनेमा को लेकर आपका क्या अनुभव है? जी सबसे पहले मैं तो यहाँ के मतलब जितने अधिकारी हैं और जो ऑर्गेनाइज़ किया है उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो पीएम मोदी साहब का है कि स्किल डेवलपमेंट और इस पर रोशनी डाल रहे हैं आजकल सभी डिपार्टमेंट में, और FTII का ये मौका लोगों को देना, दिल्ली के लोगों के आसपास है NCR के, कि भाई सिनेमा को समझा जाए, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा ये है, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ जो मैंने समझी और सीखी कि तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री है, कलकत्ता में है और मुंबई में है, तो दिल्ली में क्यों नहीं है? बदस्तूर यहाँ पे अगर देखा जाए मैक्सिमम शूटिंग आजकल की देखी जाए तो विंटर सीजन में होती है, विद परमिशन फ्रॉम NDMs एंड ऑल अथॉरिटी जो भी होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली के शूटिंग के हिसाब से मतलब एक बहुत वाजिब डायरेक्टर फिल्म मेकर्स के लिए होती है, ये तो एक बात हुई। अब दूसरा जो अनुभव की बात है कि इंडियन सिनेमा को समझना, देखिए नेट पे, वेबसाइट्स पे, बुक्स से बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, तकरीबन 500,000 किताबें छपी हैं, लेकिन यहाँ पे जो 1-to-1 एक इंटरेक्शन होता है, जिस हिसाब से नैरेटिव स्टोरी की जाती है, जिस हिसाब से बताई जाती है, तो उसको समझना एक इजी वे में हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर क्योंकि सिनेमा एक माध्यम ये नहीं कि हम 4 दिन में सीख सकते हैं, 5 दिन में है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब मैं ये कहूँगा कि टच एंड रन वो वाला इनका है कॉन्सेप्ट, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें हमें, कुछ नहीं बहुत सी चीज़ें समझने को मिली हैं। और मैं अपना बात करूं तो मैं जो चीज़ें मुझे समझने या इन्होंने बताई हैं तो मैं नेट पे जाके सर्च करता हूं, और बहुत जैसे साउंड ट्रैक है कि किस तरीके से ईजाद हुआ, ये बड़े लोगों को पता, लोग सब जानते हैं दादा साहब फाल्के की मूवी हरिश्चंद्र थी, लेकिन इतने सालों के बाद साउंड आया और इंडिया में बाद में क्यों आया, तो ये बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है कि समझना। क्योंकि आजकल जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं, साउंड इफेक्ट होते हैं, इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जाहिर सी बात है हमारे ऑस्कर विनर भी हैं लोग, इनको मिला है। और दूसरी बात यह है कि स्पेशल इफेक्ट, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, हमेशा बॉलीवुड की बात होती है, मैं उस पर नहीं जाता, मैं जाता हूँ कि जैसे साउथ की फिल्म्स बनती हैं तो उसमें हमेशा VFX पे स्पेशल जोर दिया जाता है। उसका कारण ये है कि 8 से 10 करोड़ रुपए अलग बजट बना के चलते हैं। हमारे जो बॉलीवुड की मूवी बनती है बहुत कम होता है, हालांकि शाहरुख खान और ये इन्होंने मतलब बड़ी बड़ी अपने प्रोडक्शन हाउस इस पर ज़्यादा वर्क करते हैं स्पेशल इफेक्ट पे, लेकिन हमें थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैं लोगों से मिला और मुझे एक बड़ी मतलब अच्छी बात लगी कि साइंस पे फिल्में क्यों नहीं बनती, तो दैट इज़ गुड आइडिया रियली। आप देखिए, आप हॉलीवुड मूवी गैलेक्सी देख लीजिए, गैलेक्सी में अगर देखा जाए या कोई भी मूवी है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, वो एक सेट है और इस तरीके के, और वो यहाँ पे हो सकते हैं जिस बजट से हमारे यहाँ फिल्में बनती है। लेकिन साइंस फिक्शन पे फिल्में, स्टोरी को लेके कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, मतलब इतने उदाहरण हैं, तो उस पर क्यों नहीं बनाते हैं? जो हमारे हमेशा मतलब एक मेलोडी ड्रामा बना दिया, दूसरे तरीके की चीज़ें बना दी, लेकिन साइंस पर ऐसी फिल्में बन सकती हैं। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, बॉलीवुड या साउथ की भी बात की जाए, एनिमेशन पे कंपैरेटिवली अगर हम यूरोप, अमेरिका और उनकी बात करें तो वहाँ पर शायद एनिमेशन पे बहुत काम हो रहा है। क्या हिंदुस्तान की भी सोच उस तरह की क्यों नहीं है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले भविष्य के अंदर कुछ ऐसी कुछ डेवलपमेंट होने वाली हो शायद? देखिए, एनिमेशन की जो मैं बात करूँ कि सबसे पहले हमारी जो मूवीज़ बनती है वो मतलब मैथोलॉजी के ऊपर, हिंदू उनके उस पर बनती है। रामायण जैसे भी रिसेंटली आई जिसमें अनिल कपूर से लेके बहुत से हीरो हीरोइंस ने अपनी आवाज़ दी, ये तो नंबर 1 बात होगी। तो हम जैसे देखिए सर, बड़ी सीधी सी बात होती है कि जो हमारे जो विदेशों में होता है ना, एक लिटरेचर है, लिटरेचर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत है, अलग अलग महाराष्ट्र का मराठी का अलग है, जो बहुत मतलब बढ़िया माना जाता है स्टोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैं इसको इस चीज़ से जोड़ता हूँ। उसका कारण है कि जैसे हैरी पॉटर है,
हैरी पॉटर की आप बुक्स बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एनिमेटेड मूवी या कोई दूसरी मूवी आपने देख चुके होंगे तो उससे आपको स्टोरी आइडिया हो जाता है। वो एनिमेशन के लिए वो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी क्यों ना हम कोई भी स्टोरी ले लें और उसको एनिमेटेड मूवी बनाएं। तो आपको एक स्टोरी लेना पड़ेगा, आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। हमेशा आप उसी कॉन्सेप्ट पर बात नहीं कर सकते, आप उसी टॉपिक को नहीं ले सकते कि भैया कि मतलब महाभारत हो गई या रामायण हो गई। आपको कोई ना कोई इससे हटके लोगों को, एक्चुअली यंगस्टर जो हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा फैंटेसी लगे, थोड़ा सा लोगों, बच्चों को, युवाओं को, जब भी आप बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं। आप इस तरीके से एनिमेट नहीं कर सकते कि रावण एक बना दी, उसमें जरा से बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट बना दिए, तो इस टाइप की मूवी नहीं है। अगर एनिमेशन का ऐसा नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन आपका किस हिसाब से आप किस उस पर ले जाते हैं। आजकल स्पेशल इफेक्ट सारे बाहर से बनते हैं, बाहुबली के सारे स्पेशल इफेक्ट बाहर से बनते। इवन एनिमेशन मूवी जो हिंदुस्तान में बन रही है कुछ कुछ उसके भी बाहर ही से ही उनका होता है टाइप। तो मेरे हिसाब से है कि थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर आइडियाज़ को लेकर ये बना सकते हैं। थैंक यू अमित। Yes, ma'am. Please tell me your name. I am Anandita. I have come from Noida. Before joining this course, I did not have an idea कि इधर क्या होगा क्या नहीं होगा. But after coming here, I thought कि okay, it's a very wonderful course. Some things were repetitive for me because I am from a film studies background. Okay. But overall, I learned a lot about Western cinema, which was lacking in my course. How do you come to know about this course? I came to know about this course through newspaper. Which newspaper, ma'am? Times of India. Okay. How do you find yourself now on the fourth day, the concluding day? How useful or worthful for this course for you? I would, in one line I would say Yeah. I used to watch films, now I see films. Very good. एक्चुअली मुझे सिनेमा के बारे, हिस्ट्री के बारे में, चाहे वो वर्ल्ड सिनेमा हो चाहे इंडियन सिनेमा हो, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं थोड़ा जान पाऊँ, और आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद द कोर्स, और मैं काफ़ी कुछ जानकारी लेके जा रहा हूँ, और अब मैं आई थिंक फिल्म्स को किसी और नज़रिए से देखूँगा। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर शायद आपने ये कोर्स जैसा सोचा होगा, क्या वो जस्टिफाई हो पाया 4 दिन में? यस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कोर्स। थैंक यू। व्हाट आई फाउंड क्या है कोर्स में क्या मिला, तो एक्चुअली मुझे फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के बारे में पता था, ठीक है। आई एम एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर, सो आई न्यू कि हाँ फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स कुछ होता है, बट आई नेवर न्यू कि ये 4 दिन का यहाँ होने वाला है। ये मैं एक्चुअली FTI का पेपर दिया था, तो वेयर आई फाउंड कि हाँ ये ऐसे वर्कशॉप हो रहा है, एंड उसके पेपर एग्जामिनेशन देने के बाद आई रियलाइज़ कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि बहुत वास्ट है, बी इट वर्ल्ड सिनेमा, बी इट इंडियन सिनेमा, बहुत वास्ट चीज़ है वो। तो कहीं से स्टार्ट करना है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो इस फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स ने मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है। तो दैट्स हाउ फ्रूटफुल इट वॉज फॉर मी। हर्ष रंजन नाम है मेरा। हाँ जी। मैं टीवी पत्रकार हूँ। हाँ हाँ। और ये जो 4 दिन का फिल्म एप्रिसिएशन, जिसका बहुत ही भारत सरकार ने अच्छा अनुवाद हिंदी में किया है, फिल्म रसास्वादन, यानी कि फिल्म एक रस है और जिसका स्वाद आप ग्रहण करते हैं। तो दरअसल जो इस विधा के लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए लोग हैं, इतने सारे लोग आए, और ख़ास तौर पर इस पूरे सिलेबस को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि 4 दिन में आपने बहुत कुछ सीख लिया। कहें कि गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है तो गलत नहीं होगा। जो लोग फिल्म से जुड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ नया सीखने को रहा, क्योंकि फिल्म या ऐसी तमाम विधाएं जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हैं, उसमें चर्चा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चर्चा से ही आइडिया का जन्म होता है, और इस मीडिया के लिए आइडिया जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है। जो पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने फिल्मों में कोई काम नहीं किया है, इस विधा से नहीं जुड़े रहे हैं, टेलीविज़न से या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग से, उनके लिए भी फिल्में क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, किन किन चीज़ों पर गौर किया जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि नई चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिली।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि FTII का ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय है, और अगर ऐसे ही ये कोर्सेज का शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइज करते रहें तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत में अपना जो फिल्मों का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, गौरवशाली अतीत रहा है फिल्म का, उसको आगे और बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब बतौर आप टीवी पत्रकार हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी जो फिल्म कोर्स की जो बात 4 दिन का जो हुआ, फिल्म पत्रकारिता में कितना ये सहायक साबित हो सकता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, फिल्म पत्रकारिता को आमतौर पर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि फिल्में देखी और उसके बारे में एक रिव्यू लिख दिया, और नए प्रचलन में है कि आपने 5 स्टार में से उसको कितने स्टार दे दिए। तो वो तो ठीक है, एक जनता की राय की तरफ से आप लिखते हैं, फिर उसी को देखकर लोग फिल्म देखने जाते हैं या नहीं जाते हैं, अपनी ये है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म पत्रकारिता सिर्फ फिल्मों का रिव्यू करके रिलीज़ होने से पहले उनको रेटिंग देना ही नहीं है। फिल्म पत्रकारिता में भारतीय फिल्म उद्योग क्या कर रहा है, विश्व पैमाने पर उसकी क्या पहचान है, कैसे है, और फिल्म बनाने की नई नई तकनीक क्या आ रही हैं, किस तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेकर हम बाहुबली जैसी फिल्में बना रहे हैं। तो इन तमाम तकनीक से अवगत होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फिल्म पत्रकारिता के जो पत्रकार हैं कर रहे हैं वो ऐसे कोर्सेज को करें, काफ़ी कुछ सीखें, इतिहास को जानें, और उसके बाद वो उसके बारे में लिखें, पढ़ें तो ज़्यादा जस्टिफाई होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाबा साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि रेडियो और टेलीविज़न पर आपको बहुत देखते रहे हैं, और रेडियो टेलीविज़न का तो महत्व जो जीवन में है, सिनेमा की अगर बात करें तो सिनेमा का क्या रोल है, भूमिका है एक आम जीवन में? देखिए, रेडियो और टेलीविज़न जो हैं वो छोटी छोटी फुलझड़ियाँ हैं, जबकि फिल्म जो होती है वो एक, जिसे कह सकते हैं कि 3 घंटे का अनार है या 90 मिनट का अनार है, तो वो काफ़ी देर तक अपनी रोशनी देता है। तो उसमें आप एक कम्पैक्ट एंटरटेनमेंट ले पाते हैं, उसमें एक स्टोरी कहीं से शुरू होती है और वहीं आके एंड होती है। रेडियो में हम जब जाते हैं तो रेडियो में एक कार्यक्रम है, वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर है। टेलीविज़न में अगर हम जाते हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, या कोई सीरियल भी अगर आज के तारीख में हम देखते हैं तो वो भी कट के हमारे पास में हर चीज़ आती है, जबकि फिल्म को हम लोग एक वन गो में देख लेते हैं। तो समाज में लोगों को ये होता है, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत ही तेज़ रफ्तार युग हो गया है, जिसे हम कहते हैं कि आजकल हम लोग 2 मिनट नूडल वाले मामले में हैं, या ज़िंदगी जो है जेट एज बनती जा रही है। तो इसमें हम लोग हर चाहते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान है वो हमें सीमित समय में मिल जाए। तो वो चीज़ जो है हमें फिल्म के माध्यम से मिलती है। हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, चाहे कॉमेडी है, चाहे वो पैट्रियोटिक है, कुछ है, तो वो एक शुरू से अंत तक एक उसका वो बात अलग है कि आजकल फिल्मों में भी फिल्म कामयाब हो गई तो उसका सीक्वल बनाने की परंपरा आ गई है। बट देखा जाए तो मानसिक रूप से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, क्योंकि पुराने टॉपिक्स को ही हम लोग रीओरिएंट करके ला रहे हैं, पुरानी फिल्मों को दोबारा बना रहे हैं, पुराने गानों पे दोबारा उनको जिसे हम लोग कहते हैं कि रीमिक्स बना दिया। तो नयापन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है चाहे इतना ज़्यादा, बट कुछ लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं और अच्छी फिल्में आती भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाज के योगदान में ज़्यादा भूमिका देखी जाए तो रेडियो टेलीविज़न के, क्योंकि वो इंटीरियर्स तक चला जाता है, अब सबके पास पहुंचता है। रेडियो छोटे छोटे सुदूर प्रांतों में, छोटे छोटे गांवों में भी लोग सुन पाते हैं। टेलीविज़न जो है वो भी लोगों तक पहुंचा हुआ है, रिमोट एरियाज तक। बट फिल्म जो होती हैं वो हर जगह नहीं पहुंच पाती हैं, हर जगह पे फिल्म थिएटर नहीं है। आप सुदूर नॉर्थ ईस्ट चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, वहाँ फिल्में नहीं हैं। इसलिए वो टेलीविज़न के माध्यम से, अब ये ठीक है कि इंटरनेट आ गया है या ये नेटवर्क्स जो जुड़ गए हैं, तो उसके माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से या पेन ड्राइव्स के माध्यम से लोग अपने घरों में बैठ के फिल्में इस तरह की देख लें, तो लोगों का मन में फिल्मों के लिए रुझान रहता है, क्योंकि वो आदमी उसमें अपनी पसंद की एक चीज़ देख लेता है। मगर जिसके अंदर रेडियो टेलीविज़न पर चलते जा रहे हैं, जब अपनी पसंद की कोई चीज़ आ गई तो उसे सुन लिया या नहीं। एक चीज़ और आपसे जस्ट पूछना चाहता था कि जैसे अभी
एक कोर्स आप यहाँ पर जो हो रहा है फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना लाभकारी हो सकता है एक जो फिल्म मतलब बनाने या फिल्म में काम करने या फिल्म से जुड़ने के माध्यम के लिए ये कोर्स कितना आपको लगता है कि जो स्टार्ट किया है पुणे इंस्टीट्यूट ने, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, वो कितना सार्थक होगा एक आम फिल्म मेकिंग में भविष्य बनाने या मतलब भविष्य ढूंढने के लिए? फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स में आपको फिल्म की अलग अलग विधाओं को एक थाली में परोस के पेश कर दिया जाता है। इसमें आपको फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, फिल्मों का इतिहास भी है, फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड भी है, फिल्म की एडिटिंग से रिलेटेड भी है। तो इन सब की आपको एक थ्योरेटिकल जानकारी पूरी तरह से मिल जाती है। मगर जब इसको हम लोग बड़ा कोर्स करते हैं जो कि पूना में होता है, तो वो ड्यूरेशन भी उसकी ज़्यादा होती है, उसमें आपको प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अब पहले हम लोग प्यासे जो थे सागर के पास जाते थे, आज सागर जो है वो हमारे डोर स्टेप तक आ रहा है। जैसे भूपेंद्र कैंथोला हमारे मित्र हैं डायरेक्टर, उन्होंने शुरुआत की है कि FTI पुणे को उस चार दीवारी से बाहर निकाल के अलग अलग शहरों में ले जाके वहाँ पे कोर्सेज जो हैं उनके आप कह सकते हैं कि मिनिएचर्स बना के उन्होंने इस कोर्स के वो शुरुआत की है। तो उससे अच्छा है, क्योंकि जब आपको एक कहते हैं कि आपने पहला चम्मच खा के देखा तो आपको डिश अच्छी लगी तो आप उस पूरी डिश को खाना पसंद करते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी है कि अब जैसे ही शॉर्ट टर्म मैंने किया है, तो दिसंबर में पता चला है कि उसका 10 दिन का कोर्स भी है, तो आई वुड लव टू डू दैट ऑल्सो, चाहे उसके लिए मुझे वहीं जाना पड़े। थैंक यू बाबू सर, थैंक यू।